Hello everyone, how are you? Welcome to all of you in this chemistry lecture. Again we are going to learn some concept or we are going to solve some questions of this chapter number 12, aldehyde, ketone and carboxylic acid. In previous lecture we learned about introduction of carboxylic acid, what is carboxylic acid and nomenclature of carboxylic acid. But today in this lecture, first of all I will solve some question for you and after that we will learn some new concepts. Okay, so let us start with this lecture. So you have question number 12.6. Predict the product formed when cyclohexane carbaldehyde react with following reagents. Cyclohexane carbaldehyde reacts with following reagent first, that is PH, Mg, Br and then H3O plus. So first of all, we have to draw the structure of this cyclohexane carbaldehyde. So cyclohexane means 6 carbon ring, cyclohexane, this is cyclohexane. Carbaldehyde means to this ring you have to add CHO. इस रिंग में मुझे CHO ऐड करना एट एनी कार्बन, कोई भी कार्बन. अगर आपने ये CHO ऐड नहीं किया है सो ऑल कार्बन एटम्स आर इक्विवेलेंट. सो किसी भी कार्बन पे आपको ये ग्रुप ऐड करना है. सो दिस इज नोन एज साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड. This cyclohexane carbaldehyde reacts with PH, Mg, Br. PH means phenyl. So here partial negative, partial positive. और यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हो C double bond OH. So ये यहाँ पे अटैक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा. So you have an aldehyde that reacts with what? Grignard reagent, then we get this compound COMgBrH and here we have PH. This is the first step, this one, and then you have to add this H3O plus, then you have to add this H3O plus. H3O plus में क्या होगा, यहाँ पे इंटरेक्शन ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद you get this compound, this is CH. PH के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप, बेंजीन रिंग. this is PH and OH प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऑलवेज बाई प्रोडक्ट क्या होता है, MgBr एंड OH. MgBrOH और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो MgBrOH like this. Okay, getting the point? So you have cyclohexane carbaldehyde. This cyclohexane carbaldehyde reacts with PH, MgBr and then by this H3O plus and we get this. This is the product. ठीक है, अब ये प्रोडक्ट आपको बनाना है और ये प्रोडक्ट बनेगा. आप इसको लिख लो फिर ट्राई कर लेना. ठीक है, मैं रब करता हूँ. Second is you have Tollens reagent. Tollens reagent means cyclohexane carbaldehyde reacts with Tollens reagent. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Tollens reagent. सेकेंड क्वेश्चन में क्या यूज कर रहे हैं, Tollens reagent with this aldehyde. You know that when an aldehyde reacts with Tollens reagent then it forms C double bond O minus and plus precipitate of silver mirror. ये मिलता है आपको. बस इतना ही सही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, बैलेंस नहीं करना है यहाँ पे, बस इतना लिख देना है. ठीक है, फिर ये तो सेम है तो मैं बार बार चेंज करके आपको लिख देता हूँ. थर्ड में क्या यूज करना बेटा, you have to use in third semi carbazide.
सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, देन वीक एंड वीक एसिड। वीक एसिड का मतलब आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, H+, मतलब सेमी कार्बाजाइड का हम रिएक्शन करते हैं किस, H+ के प्रेजेंस में। तो सबसे पहले ये रिएक्शन कर लो आप सेमी कार्बाजाइड का। सेमी कार्बाजाइड क्या होता है बेटा, दिस इज NH2, फिर क्या बेटा C डबल बॉन्ड O, फिर क्या NH एंड देन NH2, दिस इज सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड रिएक्ट विथ, हियर वी हैव C डबल बॉन्ड OH। सो लास्ट टाइम भी मैंने बोला था दिस NH2 इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद दिस वन, वाई, बिकॉज इट इज बॉन्डेड टू C डबल बॉन्ड O। कौन सा रिएक्शन करेगा, ये वाला। तो आप यहाँ से H2 और यहाँ से O हटा दो। सो H2 और O हटाने के बाद क्या मिलेगा बेटा आपको, ये प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा, CH और यहाँ से H2 और यहाँ से O आपने रिप्लेस कर दिया है। सो डबल बॉन्ड N बचेगा एंड देन NH, C डबल बॉन्ड O एंड क्या NH2। तो ये दोनों कंडीशन जब हम सेमी कार्बाजाइड यूज करते हैं तो फिर H+ भी यूज करते हैं और ये अपने को फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि ये अलग से हमें कुछ यूज करना। एंड वीक एसिड मतलब ये दोनों साथ में रहेंगे, सेमी कार्बाजाइड प्लस H+। मैंने आपको रिएक्शन बताया था ना कि C डबल बॉन्ड O दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन व्हेन रिएक्ट्स विद सेमी कार्बाजाइड NH2 NH C डबल बॉन्ड O एंड क्या NH2 इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो ये H+ प्रेजेंट रहता है, अलग से नहीं इसका कुछ काम है, एसिड की तरह बिहेव करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है। ठीक है, ये जो H+ है दैट इंक्रीज द रेट ऑफ अटैक ऑफ व्हाट, ये कौन सा रिएक्शन चल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड, ऑलरेडी आपको मैंने बताया। हाँ, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि सर ये कहाँ से, ये दिस इज कैटलिस्ट यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ओके, लिखो फटाफट। Next, third one, you have excess ethanol and acid, means you have to add excess ethanol. You have aldehyde, and this aldehyde reacts with excess ethanol. Ethanol means HOC2H5 and HOC2H5. So when an aldehyde H+ in presence of acid, so what happens when aldehyde reacts with alcohol, excess of alcohol, then it forms what, acetal, ये देखो acetal, ये बाहर हो जाएगा and we get this compound CH, then OC2H5 and OC2H5. so this is what, ये ईथर ही तो है ना, R, ये R का मतलब कार्बन है, फिर O है, फिर कार्बन है, तो ये क्या है, ये ईथर है। डाई अल्काइल, डाई इथाइल ईथर है ये पूरा, कोई नाम नहीं बता रहा हूं, बट ये ईथर ही फॉर्म हो रहा है। तो व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ अल्कोहल देन इट फॉर्म्स ईथर, फॉर्म किया है, जिसको हम और कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटल। दिस इज ऑल्सो नोन एज एसिटल। नेक्स्ट, और उसने एसिड बोला तो ये सब रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में, अगेन टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। फिफ्थ है बेटा जिंक अमलगम एंड डाइल्यूट HCl, जिंक अमलगम एंड डाइल्यूट HCl. सो व्हेन यू हैव एन एल्डिहाइड C double bond OH and you are using zinc amalgam and HCl, so what happens, so this group, this CHO gets converted into hydrocarbon, what, hydrocarbon, CH3. so this is cyclohexane carbaldehyde and this is what, this is alkane. आपको अल्केन मिल गया, पूरा ये कन्वर्ट हो गया किसमें, CH3 में, कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल है, समझ में आया, पक्का। तो ये आपका 12.6 है, फटाफट लिखो इसको। राइट डाउन फास्ट।
ओके, हो गया, बहुत अच्छे। अगेन ट्राई दीज क्वेश्चंस ऑन योर रफ बुक एंड डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। Which of the following compound would undergo aldol condensation, which the Cannizzaro reaction and which neither? Means जो उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं, ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है। सो विच कंपाउंड विल गो फॉर एल्डोल, विच विल गो फॉर कैनिज़ारो, और ऐसा कौन सा है जो न तो एल्डोल देगा न तो कैनिज़ारो, आपको ये बताना है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट of aldol condensation as well as Cannizzaro reaction. So first पे हम फोकस करते हैं। You have methanol. You have methanol. Methanol means what? This is formaldehyde. This is methanol. So you have to tell this compound will undergo aldol reaction or Cannizzaro reaction. So again I am going to revise to you guys. In aldol reaction there must be alpha hydrogen, at least one alpha hydrogen with aldehyde और कीटोन। आपके एल्डिहाइड और कीटोन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तब जाके वो एल्डोल रिएक्शन देगा। क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है? नो। इन दिस फॉर्मल्डिहाइड और मीथेनॉल और मीथेनल वी डोंट हैव एनी हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? एनी हाइड्रोजन का मतलब मैं कौन सा हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ? अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन कभी होता है जब मेरे मेन ग्रुप से कोई कार्बन अटैच होगा, जैसे C डबल बॉन्ड O है, अगर इससे कोई कार्बन अटैच है तो ये अल्फा कार्बन है, और इससे जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऐसा तो इसमें नहीं दिख रहा है, मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखता है। अब जब ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखता तो फिर हम किसके बारे में सोचेंगे? कैनिज़ारो। What is Cannizzaro reaction? In Cannizzaro reaction, an aldehyde with no alpha hydrogen, मतलब आपके पास एक एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो कैनिज़ारो रिएक्शन को फॉलो करता है और क्या बनाता है? इन कैनिज़ारो रिएक्शन एन एल्डिहाइड विच डज नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन विल ऑक्सीडाइज एज वेल एज गेट रिड्यूस, मतलब उसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और एक मॉलिक्यूल या दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा? रिड्यूस होगा। सो दैट रिएक्शन इज नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन। सो क्या ये कैनिज़ारो में जाएगा? यस, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिज़ारो रिएक्शन होगा। सो कैनिज़ारो, इट विल फॉलो कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कितने मॉलिक्यूल्स लेने का यहाँ पे? 2। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या लेते हैं बेटा? क्या लेते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। एल्डिहाइड्स having no alpha hydrogen in presence of concentrated NaOH forms what? 1 mole of alcohol and 1 mole of what? Carboxylate ion, and this reaction is known as disproportionation reaction. It is also known as Cannizzaro reaction। मतलब कैनिज़ारो रिएक्शन में यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो भी कितने मॉलिक्यूल लेने का? 2 मॉलिक्यूल, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसमें से फिर क्या ऐड करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, या कैनिज़ारो लिखा है तो अंडरस्टूड है कि ये होगा, और इसमें से एक मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कर दो आप? एक मॉलिक्यूल से आप कार्बोक्सिलेट आयन बना दो HCOO माइनस, और दूसरे को किस में कन्वर्ट कर दो आप? CH3OH। ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरा मिथेनॉल के बाद क्या दिया उन्होंने? सेकेंड वन 2 मिथाइल पेंटेनल, 1 2 3 4 5 पेंटेनल, 5 कार्बन 1 2 3 4 5, but out of 5 carbon 1 carbon will be from aldehyde। L का मतलब aldehyde। So out of 5 carbon 1 carbon will be from aldehyde। At second position we have to add methyl। So this is first and this is second position, we have to add methyl, and then add hydrogen 3 2 2 1, ये आपका 2 मिथाइल पेंटेनल। सो अगेन वो पूछ रहे हैं क्या ये एल्डिहाइड और एल्डोल और कैनिज़ारो में से कौन सा रिएक्शन देगा? तो फिर से हमें क्या ढूंढना है? अल्फा हाइड्रोजन। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या? ये क्या है? देखो ये मेन ग्रुप है, इसके बाद ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है क्या? यस है ना अल्फा हाइड्रोजन। सो आप क्या लिखोगे? इट विल अंडरगो
it will undergo aldol reaction. aldol reaction, it will undergo aldol reaction. अब aldol reaction में रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी बताना आपको, ये लिख लिया ना आपने. So now we are going to write the product of this compound. So you have CH3, CH2, CH2, CH, CH3 and C डबल बॉन्ड OH. कितने मॉलिक्यूल लेने का, 2 मॉलिक्यूल हमेशा. फिर से ले लिया मैंने CH3, CH2, CH2, CH, CH3 and C double bond OH in presence of what, dilute NaOH. ये तो आपने लिख लिया होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि प्रोडक्ट मुझे लिखना है यहाँ पे. ठीक है, चलो कंटिन्यू कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ. सो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, मैंने आपको बोला था जब भी आप एल्डोल में क्या करते हो, दिस इज योर अल्फा कार्बन. सो अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को आप ब्रेक करो और कहाँ पे लगाओगे, इस वाले मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन लेने का और फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल के O के पास अटैच करने का. और ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन, इसको इस कार्बोनाइल कार्बन से अटैच करेंगे. तो मैं समझने के लिए ये एरो बना देता हूँ आपके लिए. सो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, ये तो वैसे लिखेंगे पूरा, CH3, CH2, CH2, CH, CH3 एंड देन CH ऑलरेडी है, फिर यहाँ पे क्या आएगा OH एंड देन दिस अल्फा कार्बन ये इससे अटैच होगा. सो वी गेट C. देखो ये हाइड्रोजन हटा दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा CH3, CH3. और ये देखो ये भी ग्रुप है और ये भी ग्रुप बचा हुआ, ये ग्रुप भी है, तो इसको आप ऊपर अटैच कर लो क्या, CH2, फिर क्या CH2 और फिर क्या CH3. यही अटैच है ना, तो पहले CH2 CH2, ऐसा नहीं कि CH3 से अटैच किया तो गलत हो जाएगा. और क्या अटैच है यहाँ पे, दिस CHO, दिस वन CHO. ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको. मिलेगा क्या प्रोडक्ट, यस पॉसिबल है ना, तो मिल गया आपको. ये आपका प्रोडक्ट है, आप इसको लिख लो. फिर से एक बार ट्राई करो, रब करो. ओके, नाउ सो ये आपका प्रोडक्ट हो गया. अब इसमें OH भी है और CHO भी है. सो दिस इज व्हाट, एल्डोल. हीटिंग करेंगे क्या, यस आप हीटिंग भी कर सकते हो. हीटिंग करने पे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या, नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है. तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो वो इसके साथ अटैच है, किसके साथ, C डबल बॉन्ड O. सो दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर हमें यहाँ से हाइड्रोजन नहीं ले सकते, फिर कहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ से. सो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH. तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, एल्डोल. कंडेंसेशन क्या होगा, ये एल्डोल बना, इसके बाद क्या बनेगा, और एल्डोल को और क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज बीटा हाइड्रोक्सी व्हाट, एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. और कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, CH2, CH2, C, CH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH, देन C, CH2, CH2, CH3 एंड देन CHO एंड हियर ऑल्सो CH3. दिस नहीं हो गया, अल्फा तो ये है, अल्फा ये बीटा ये गामा, यहाँ से बाहर करेंगे. ठीक है, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो बहुत ही कम अमाउंट में है. क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं था, इसलिए हमने यहाँ से ले लिया ये. बट इसका जो अमाउंट होगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बहुत ही क्या है, स्टेबल है, इसके पास कोई एसिडिक कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है. यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो प्रोडक्ट क्या बनता, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड. बट यहाँ से भी हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, बट वो बहुत इजीली, मतलब और ज़्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी तब जाके ये ब्रेक होगा. तो ये बीटा और कौन सा पोजीशन से बाहर हो रहा है, बीटा एंड गैमा पोजीशन से बाहर हो रहा है. तो ये एक अल्कीन बनेगा, बहुत ही माइनर प्रोडक्ट होगा बट बन सकता है, माइनर होगा बट बन सकता है. ठीक है, सो रब करता हूँ इसको मैं, आप इसको लिख लो.
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यू हैव थर्ड क्वेश्चन ऑफ 12.7. You have benzaldehyde. Benzaldehyde means what? This is benzaldehyde. Benzaldehyde. Benzene with CH. Benzaldehyde. So again, benzaldehyde में इस कार्बन पे देखो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नो अल्फा हाइड्रोजन. नो अल्फा हाइड्रोजन. नो अल्फा हाइड्रोजन मीन्स नो एल्डोल रिएक्शन. No aldol reaction. Cannizzaro reaction is possible. Cannizzaro reaction is possible. Cannizzaro possible है बट एल्डोल नहीं पॉसिबल है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. तो फिर कैनिज़ारो में क्या होगा बेटा? कैनिज़ारो में क्या होता है? You have benzaldehyde, you have to take 2 molecules and you have to use what? Concentrated NaOH. Concentrated. So 1 molecule ऑक्सीडाइज करो. आपका एल्डिहाइड अगर ऑक्सीडाइज होगा, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? एल्डिहाइड. तो क्या बनाता है बेटा? कार्बोक्सिलेट आयन. ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन. और रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज. देखो यही ऑक्सीडाइज होगा और यही रिड्यूस होगा. तो ऑक्सीडाइज होगा तो क्या? COO माइनस. और रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा बेटा? बेंजीन रिंग वैसे ही रहने वाला है. वी गेट व्हाट? CH2OH. एल्डिहाइड CHO ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बना रहा है? कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड. और अगर ये रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा? CH2OH. दैट इज एल्कोहल. दैट इज एल्कोहल. इसका नाम क्या होगा? अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं एसिड डालूंगा तो यहाँ पे नाम क्या आएगा? बेंजोइक एसिड. और ये क्या है? बेंजाइल अल्कोहल. नाम याद आ गया होगा आपको. दिस इज बेंजाइल अल्कोहल. बेंजाइल अल्कोहल. दिस इज बेंजाइल ग्रुप. बहुत बार बता चुका हूँ बट बार बार मैं उसको याद दिलाता रहता हूँ आपको. क्यों याद दिलाता रहता हूँ? क्योंकि वो याद हो जाए. प्रैक्टिस करो आप. कम से कम वीडियो देख के ही आपको लगे कि नहीं यार सर ने ये बेंजाइल बोला था, कहीं मैंने देखा है, कहीं मैंने देखा है. तो इससे आपको ईजी रहता है. ठीक है, तो ये भी आप लिख लो फटाफट. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. बेंजोफिनोन. अब ये बेटा बेंजोफिनोन क्या है? ये देखो बेंजोफिनोन. तो ये हो गया आपका बेंजीन, फिर C डबल बॉन्ड O. ये है बेंजोइल ग्रुप. बेंजोइल. दिस इज बेंजोइल ग्रुप. बेंजोइल. इसमें फिर से एक बेंजीन ऐड कर दो. सो दिस इज नोन एज बेंजोफिनोन. बेंजोफिनोन में देखो जरा बेटा आप यहाँ पे और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. देखो C डबल बॉन्ड O है, ये कीटोन है. इस कीटोन में इस कार्बन पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. ठीक है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन मीन्स नो एल्डोल रिएक्शन. तो क्या कैनिज़ारो पॉसिबल है? नहीं. कैनिज़ारो में क्या चाहिए? एल्डिहाइड चाहिए. एल्डिहाइड. कैनिज़ारो में क्या चाहिए मुझे? एल्डिहाइड चाहिए. कैनिज़ारो के लिए एल्डिहाइड चाहिए. बट ये क्या है? हाँ, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बट ये क्या है? कीटोन है. बेटा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और ये कीटोन है. अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल नहीं होगा और ये कीटोन है तो इसमें कैनिज़ारो भी नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज कैनिज़ारो किस में पॉसिबल है? एल्डिहाइड में. क्यों? क्योंकि बिकॉज इन एल्डिहाइड यू हैव C डबल बॉन्ड OH. सो आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, ये वाला. तो ये इजीली ब्रेक हो जाता है. कीटोन में क्या होगा? C डबल बॉन्ड. ये देखो आपको फिर से ये क्या है? C डबल बॉन्ड. R का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे C है और यहाँ पे भी C है. तो आपको CC बॉन्ड ब्रेक करना है और CC बॉन्ड ब्रेक करना क्या है? डिफिकल्ट है. तो यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल नहीं है. और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एक पॉसिबिलिटी बनती है किसकी? कैनिज़ारो की. बट कैनिज़ारो में क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो. तो ये ना तो एल्डिहाइड है तो कैनिज़ारो नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बट एल्डिहाइड नहीं है. बात समझ में आई? मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज कर दूं.
कि अगर मेरे पास एक एल्डिहाइड और कीटोन है एंड दे आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, सो दे विल फॉलो और दे विल अंडरगो एल्डोल रिएक्शन कंडेंसेशन ऑल्सो, अगर अल्फा उनके पास फिर से अल्फा हाइड्रोजन बचा होगा तो। बट अगर आपके पास कैनिज़ारो रिएक्शन आपको शो करना है, सो पहले तो वो एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो ये अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है बट ये कीटोन है, तो कैनिज़ारो भी फॉलो नहीं करेगा। सो नो कैनिज़ारो रिएक्शन, नो कैनिज़ारो रिएक्शन। इसलिए उसने क्वेश्चन में दिया था कौन सा एल्डोल को जाएगा, कौन सा कैनिज़ारो को जाएगा और कौन सा है जो दोनों को नहीं जाएगा, दोनों रिएक्शन नहीं करेगा। सो आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, एल्डोल एंड व्हाट, कैनिज़ारो, एल्डोल एंड कैनिज़ारो। जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, अगर आपको एल्डोल आ गया तो क्रॉस भी आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है, उसको मैं एक क्लास में एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, ठीक है, फिर से क्रॉस का। तो ये क्लियर हो गया आपको। सो बेंजोफिनोन विल नॉट अंडरगो एल्डोल रिएक्शन एज वेल एज कैनिज़ारो रिएक्शन। फिफ्थ वन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिफ्थ वन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है ये क्वेश्चन, आ भी चुका है आपके एंट्रेंस में। साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन, हेक्सेनोन, दिस इज बेटा साइक्लोहेक्सेनोन, ये आपका है साइक्लोहेक्सेनोन। सो देखो आप जरा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, एंड दीज टू कार्बन आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, यस दिस इज अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा, ये दो अल्फा, इस साइक्लोहेक्सेनोन में अल्फा है, तो आप कहीं का भी अल्फा ले सकते हो, अल्फा कार्बन है और इन सभी के पास दो हाइड्रोजन भी हैं, अल्फा हाइड्रोजन भी है, ठीक है। सो अल्फा हाइड्रोजन है भाई, इधर कोई दिक्कत नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है सो इट विल अंडरगो एल्डोल रिएक्शन, नॉट कैनिज़ारो, कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो तो वैसे भी नहीं सोचना क्योंकि ये कीटोन है। अभी प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, इसके प्रोडक्ट देखो आप। सो यू हैव टू टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, यू हैव टू टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन, 2 मॉलिक्यूल्स, इधर मैं लिख देता हूं दोनों मॉलिक्यूल, ओके बेटा। और इन प्रेजेंस ऑफ क्या लेना है, दैट इज डाइल्यूट NaOH, और यू कैन टेक BaOH ट्वाइस ऑल्सो। सो देखो इधर भी अल्फा इधर भी है, तो इसका अल्फा ले लेते हैं, यहाँ पे अल्फा कार्बन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो अभी मैंने क्या बोला था, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से ये अल्फा हाइड्रोजन ब्रेक करूंगा और किसके पास ले जाऊंगा, O के पास। और ये जो कार्बन है बेटा, ये कार्बन किसके पास जाएगा, C के पास, इस कार्बन के पास। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, देखो आप जरा। सो इसको वैसे ही बना दूं मैं, रिंग, ये रिंग बना दिया मैंने, और ये देखो आप, इसके पास OH, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने लिख दिया OH। अब ये कार्बन इससे अटैच होगा, ये कार्बन, ध्यान देना बोर्ड पे, ये ध्यान देना, इसको नंबरिंग कर लेते हैं, ये 1 कार्बन है, ये 2 है मान लेते हैं, तो ये 2 से अटैच है, ये वाला जो कार्बन है ये 2 से अटैच है, तो ये 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन से अटैच है। और यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोगों ने, डबल बॉन्ड O, ये कौन सा पोजीशन हो गया, 1। इधर भी लिख सकते हो आप डबल बॉन्ड O, या ऊपर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पोजीशन है और सेकेंड पोजीशन से ये अटैच हो गया, क्लियर हो गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर एल्डोल प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट है, एल्डोल या कीटोल, कीटोन है तो कीटोल भी बोल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अल्फा पोजीशन। नंबरिंग समझ में आ गई, ये केवल ये नंबरिंग करना नहीं है, केवल आपको बताने के लिए, ये तो 1 पोजीशन है, 2 केवल आपको समझाने के लिए कि कौन से पोजीशन से, कौन से कार्बन से इसको अटैच कर रहे हो, तो ये वाले कार्बन को इससे अटैच करना है। तो फिर जब इसको ऐसे करके आपने लिखा है, ऐसे करके, तो ये बना है, गेटिंग द पॉइंट। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, सो अगेन दिस इज व्हाट, बीटा हाइड्रोक्सी, एंड कीटोन से आपने बनाया तो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी व्हाट, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन।
This is beta hydroxy ketone. Beta hydroxy ketone, and then we have to do the heating and minus H2. माइनस H2 कभी पॉसिबल है अगर आपके पास अगर एक और अल्फा हाइड्रोजन बचा हुआ है। देखो आप जरा अल्फा बीटा, तो इसको हटा दो अल्फा बीटा, तो यहाँ पे देखो आप ये है आपका OH और इस कार्बन के पास ऑलरेडी कितने बॉन्ड है 1 2 and 3। अभी इसका एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, सो ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, सो ये H2O बाहर होगा and you get this final product, double bond। फिर क्या बेटा, like this C double bond O, यहाँ पे देखो this is your product, this is your product। फिर से मैं बता दूं आपको, you have this cyclohexanone, you have to take second molecule of cyclohexanone। ये अल्फा कार्बन है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, सो एक हाइड्रोजन आपने ब्रेक किया और यहाँ पे लगाया, और ये जो कार्बन है वो इस कार्बन पे, सो क्या मिलेगा आपको, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, डाइल्यूट NaOH। सो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, देखो जरा आप, ये यहाँ पे ये हो गया OH, O और H, OH बन गया और ये कार्बन इससे अटैच हो गया, तो कार्बन अटैच हो गया। अब ये कार्बन अटैच हुआ, ये कार्बन इसके पास वाले कार्बन पे क्या है सीड, अगर ये कार्बन अटैच हुआ तो इसका पास वाला कार्बन क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो आप किसी भी पोजीशन पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड O। भाई ये भी यहाँ पे अटैच किया, तो इस कार्बन को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, तो अब इस कार्बन के बाद देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, C डबल बॉन्ड O। और फिर अभी हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ है, सो व्हेन यू विल डू व्हाट, हीटिंग minus H2O and this is your final product, this is your final product। so यही डाउट था जो आपने पूछा था मुझसे इसके बारे में, ठीक है। तो आप इसको एक बार फिर से ट्राई करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व few more question for you, and you can send me your doubts or questions। किसी भी सोर्स से आपने अगर रेफरेंस बुक से कोई सॉल्व कर रहे हो तो भी आप भेज सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। सो ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू प्रैक्टिस ऑल दिस कॉन्सेप्ट, कैनिजारो, एल्डोल, दैट इज आइडोफॉर्म रिएक्शन, टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन। ओके, इसके बाद प्रिपरेशन में नेम, हाँ, क्लेमेंसर रिडक्शन, ओल्फ-किश्नर रिडक्शन, और इसके पहले भी आपने नेम्ड रिएक्शन पढ़े थे, आपने याद है, इटार्ड रिएक्शन, रोजेनमंड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, गेटरमैन-कोच रिएक्शन, एंड ऑल दीज नेम्ड रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन एंड CdCl2, तो ये बार बार आपको बोलते रहना है और प्रैक्टिस करनी है, तब आप जाके इसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट बेटा।